اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو خوبصورت واقعہ پیش آئے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دن پیر کا تھا۔ اس وقت عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تو اس بچے کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ بچے کی اچھے طریقے سے پرورش ہو اور وہ عربی زبان سیکھ لے۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ ان دائیوں نے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے اس طرح بہت سی دائیاں حضرت عبد المطلب کے گھر میں آئی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے انہوں نے اس بچے کو دودھ پلانا پسند نہیں کیا۔ ان کو پتہ نہ تھا کہ اس گھر میں سے کچھ نہیں ملنا، کہ انہیں پتا تھا یہ یتیم بچہ ہے، اس گھر میں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ وہ دائیاں دودھ پلاتی بھی کیسے؟ یہ تو سعادت حضرت حلیمہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب دیکھا حضرت حلیمہ نے کہ سب دائیوں کو بچے مل گئے ہیں اور کوئی بچہ نہیں رہا ایک بچے کے علاوہ، حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے اور مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ یہ عورتیں تو مجھے تانے دیں گی، بغیر بچے ہی کے حلیمہ تو آ گئی، سب بچوں میں سے ایک ہی بچہ بچا تھا جو یتیم تھا، کیوں نہ ہم اس بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ حارث نے کہا کہ اس کے شوہر نے کہا اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ جب وہ میاں بیوی حضرت عبد المطلب کے گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانس لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول لی۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سے ایک نور نکلا اور آسمان پر پھیل گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان سے چوما اور میں نے اجازت لی حضرت آمنہ سے اور حضرت عبد المطلب سے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف سے دودھ پیا، اور جب میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نہیں پیا۔ آپ ہمیشہ ہی دائیں جانب سے دودھ پیتے تھے اور بائیں طرف سے میرا بیٹا دودھ پیتا تھا۔ میں خچر پر سوار ہوئی اور وہ خچر دوڑنے لگا، حالانکہ وہ خچر بہت کمزور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں آئے تو خچر دوڑنے لگا کہ پہلے اتنا مریل تھا کہ اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گود میں آئے تو وہی ماریل خچر دوڑنے لگا۔ سب حیران ہو گئے۔ اور جب میں گھر آئی کہ حضرت حلیمہ نے کہا کہ جب میں گھر آئی اور میری بکریاں دودھ بہت ہی کم دیتی تھی، میری بکریوں نے دودھ اتنا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے کر آئی تو حضرت حلیمہ کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ سب برتن بھر گئے اور دودھ ختم ہی نہ ہوا، اور ہم نے جان لیا کہ یہ برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ اور لوگوں کی بکریاں جو بہت زیادہ دودھ دیتی تھی انہوں نے کم دودھ دینا شروع کر دیا۔
गर्ज हमारे घर में हर तरफ बरकतें फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 माह के हुए तो चलने फिरने लगे। शान है अल्लाह ताला की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 माह के हुए तो बातें करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 माह के हुए तो साफ बातें करने लगे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बरक़ात सामने आई। जब हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह तू पाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के पास हज़रत आमना के पास आई। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2 साल थी। हज़रत हलीमा ने देखा कि मक्के में बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं, तो हज़रत हलीमा ने हज़रत आमना से इजाज़त मांगी कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाएं। हज़रत आमना ने इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों को देखते खेलते कूदते तो आप उनके पास नहीं जाते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत हलीमा से कि अम्मा मेरे बहन भाई दूध शरीक नजर नहीं आते। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ने कहा वो बकरियां चराने जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं भी सुबह उनके साथ जाऊंगा। सुबह को सब बच्चे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी बकरियां चराने चले गए। एक दिन एक बच्चा दौड़ते दौड़ते हुए हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह के पास आया और कहा अम्मी जान जल्दी जल्दी से आए, नहीं तो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर ही जाएंगे। और हज़रत हलीमा जल्दी जल्दी से भाग कर आई और देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और रंग जर्द हुआ था। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे पास 2 आदमी आए। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। एक हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे और दूसरे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा ये वही है ना? फिर उन्होंने मुझे लुटा दिया। फिर उन्होंने मेरे सीने को चाक किया। फिर उन्होंने कुछ तलाश करना शुरू कर दिया। फिर उनको जो तलाश कर रहे थे वो मिल गया। वो क्या था? वो एक स्याह रंग का एक दाना था। तो वो उन्होंने निकाल कर फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा इस बच्चे को हम घर छोड़ आते हैं। जब बलाई इलाके में पहुंचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं निकल जाते हैं। हज़रत हलीमा और उनका शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तलाश करते हैं मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नहीं मिलते। और हज़रत आमना के घर आकर खबर देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गुम हो गए हैं। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है कि मेरा पोता गुम हो गया है तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्के में जाकर दुआ करवाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश के लिए निकल जाते हैं। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं कि एक बच्चा दरख्त के पास खड़ा हुआ है, दरख्त के यानी नीचे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा कर कहते हैं मैं तो तुम्हारा दादा जान हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आते हैं। हज़रत आमना के पास आए तो हज़रत आमना ने पूछा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों लेकर आई हो? तब हज़रत हलीमा ने जो वाक़या रास्ते में देखे थे वो वाक़या हज़रत आमना को सब बताए। फिर हज़रत हलीमा ने कहा मुझे डर था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ हो ना जाए। और एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी
जो तुरैत का दावा करते थे। मैंने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बच्चे के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? मैंने उनको उसकी पैदाइश के बारे में बताया तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत हलीमा ने उनकी बात सुन ली थी। जब उन्होंने हज़रत हलीमा से पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? तो हज़रत हलीमा ने अपने शौहर की तरफ इशारा किया, नहीं तो। यहूदियों ने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इस बच्चे को कत्ल ना कर देते, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे। इसी तरह वहां से एक मेला और लगता था। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस मेले में फिर रही थी। एक काहन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ी। उस काहन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और कहने लगा, इस बच्चे को कत्ल कर दो। हलीमा रज़ी अल्लाह ने फिर उनकी बात सुन ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। इसी तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। उन लोगों ने जब काहन की आवाज सुनकर बच्चे को तलाश करना शुरू कर दिया और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिले, तो लोगों ने उस काहन से पूछा कि आप इस बच्चे के बारे में कह रहे थे कि उसको कत्ल कर दो। तो उस काहन ने कहा, मुझे अपने खुदाओं की कसम कि ये बच्चा हमारे बुतों को तहस नहस कर देगा, तुम्हारे दीन पर चलने वालों को कत्ल कर देगा। हज़रत हलीमा एक जगह से गुजरी, वहां भी मेला लगा हुआ था। वो एक नजूमी था, वो लोगों की किस्मत का हाल बताता था अंदाजे लगा कर। नजूमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर मुहरे नबूवत देख ली। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी देख ली तो कहने लगा, ऐ लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो। ये बच्चा तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा, तुम्हारे दीन को तबाह कर देगा और तुम पर गालिब आएगा। नजूमी आगे बढ़ा और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुआ तो वो नजूमी पागल हो गया, उस पागलपन में ही मर गया। और आगे एक और वाकया पेश आया। जिस वक्त हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के पास हवाले करने के लिए जा रही थी कि ईसाइयों की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर मोहरे नबूवत देखी और आंखों से सुर्खी देखी और कहने लगे, ऐ हलीमा, इस बच्चे की आंखों को कोई बीमारी है? तो हलीमा बोली, इसकी आंखें ऐसी ही हैं। तो वो यहूदी बोले, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इस बच्चे को अपने साथ अपने मुल्क ले जाएंगे, हम इस बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान को सारा वाक़े सुनाए जो रास्ते में पेश आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना यानी उनकी माँ के हवाले कर दिया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी और कुछ रवायत में आता है कि 6 साल थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीने मुनव्वरा गई और अपने मेके गई। एक दिन 2 आदमी यहूदी आए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने लाओ, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। और एक दूसरे से कहने लगे, देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नबी है, अपनी उम्मत के यहाँ जंग होगी और कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा उनकी ये बातें सुनकर डर गई और आपको लेकर चल पड़ी और रास्ते ही में वफात पा गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त 6 साल थी।